मान लो मेरे को कोई लाइन है L1 या L विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो पॉइंट्स ने x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, x2 कॉमा y2 x1 कॉमा y1। मैं चेक करना कि x1 y1 स्ट्रेट लाइन दे सेम साइड ते लाई कर रहे हैं, मीनस वैदर दे आर लाइंग बोथ आर लाइंग ऑन द लेफ्ट टू दिस लाइन, या दोनों ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ। बट अगर आप ये चेक करना हो कि वैदर दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन और ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, तो आप की करते हैं, आप पावर ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। पावर ऑफ पॉइंट ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, s ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ s ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦੋ x1 ਐਂਡ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦੋ y1। ठीक है, सिंपली दैट विल बी कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। मतलब पावर ऑफ पॉइंट इफ इट इज P1, if it is P2, तो S of P1 will simply be equals to AX1 plus BY1 plus C1 and SP2 that will be AX2 plus BY2 plus C2। मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो if SP1 upon SP2 is greater than 0, and second condition could be SP1 upon SP2 is less than 0। SP1 upon SP2 greater than 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। एंड इट विल बी लेस देन 0 व्हेन आइदर ऑफ देम विल बी नेगेटिव, कोई एक की होएगा नेगेटिव होएगा। ठीक है, तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ अगर पावर ऑफ पॉइंट दोनों ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ पॉजिटिव ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ पावर ऑफ पॉइंट ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ नेगेटिव, this implies both lies on same side of line। ठीक है, एंड अगर वो किया गया नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एक बारी पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आई होगी, दूसरी बारी पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आई होगी, तो मीन्स दे लाई ऑन डिफरेंट साइड्स या ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेने आप, मान लो मेरे को एक लाइन है 2x plus 3y plus 4 equals to 0, पॉइंट है 1,1 एंड 0,0। आप चेक करना कि वैदर दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन और दे आर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, लेट दिस बी पॉइंट 1, लेट दिस बी पॉइंट 2। तो SP1 कितना हो जाएगा अपने को 2 plus 3 plus 4 that will be equals to 9। and what will be SP2? SP2 will be 0 plus 0 plus 4 that is equals to 4। now SP1 upon SP2 that is greater than 0, this implies they lie on same side of line। ठीक है, सिंपल ही कंसैप्ट ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x1 ਰੱਖ ਦਈਏ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y1 ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਲਿਪਸ ਸਭ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ xy ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, जो वैल्यू आती है निकल के अपने को दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। अगर दोनों पॉजिटिव ने या दोनों नेगेटिव ने दे लाई ऑन सेम साइड, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दे लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, लिख लो इन्हों ब्रीफली इन्ना फिर क्वेश्चंस करते हैं।
है। मान लो कोई लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड देर आर पॉइंट्स 2,1 एंड -3,5 एंड -3,5, ठीक है। चेक देयर relative position, ठीक है। देख लेने एग्जाम्पल है, सिंपल है। की होएगा 2,1 जो आप पुट करांगे यदि पावर ऑफ पॉइंट कितनी आ जाएगी अपने को 6 माइनस 2 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 एंड -3,5 ਦੇ ਨਾਲ कितना आ जाएगा -9 -10 प्लस 1 -18, ठीक है। एक बारी पॉजिटिव आ रहा है, एक बारी नेगेटिव आ रहा है, तो दे लाई ऑन ऑपोजिट साइड, सिंपल, ठीक है। ओरिजिन ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ओरिजिन ਔਰ ਨੋਟ। ओरिजिन ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। सेम साइन आ गया तो दे लाई ऑन सेम साइड, अगर डिफरेंट आया तो दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC एंड देयर इज अ पॉइंट P x1 y, ठीक है। मान लो मेरे को एक ट्राइंगल है ABC एंड ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ x1 y1। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB x1 y1 B सॉरी ਇਹਨੂੰ xy ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ h, k ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ h, k। this is x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y3, ठीक है। a ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ a1x plus b1y plus c1 equals to 0, this is a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a3x plus b3y plus c3 equals to 0, ठीक है। ट्राइंगल ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ वर्टिसेस गिवन है ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ गिवन है। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ वर्टिसेस गिवन ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਡਸ गिवन ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ वर्टिसेस ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ गिवन ਨੇ and there is a point P lying inside the triangle. Under what conditions it will be confirmed that P will be lying inside the triangle? ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਕੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ P is lying inside the triangle by this concept? AC दोनों पॉइंट्स, हाँ हाँ दसो अगे की होएगा उन्होंने नहीं, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पेयर वाइज देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ भी आंसर ठीक है, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ डिस्क्रीट आंसर नहीं आएगा। ਕੀ ਹੋਏਗਾ देखो, अगर P पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लाई कर रहा, ट्राइंगल ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लाई कर रहा, ਤਾਂ मतलब A and P must lie on same side of BC, है कि नहीं। P and A must lie on same side of BC. Similarly, B and P they must lie on same side of AC and P and C they must lie on same side of A. Simple, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस होंगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। तो मतलब SPA upon SP, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ A upon ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ P must be greater than 0, first condition। पावर ऑफ पॉइंट ऑफ B upon पावर ऑफ पॉइंट ऑफ P must be greater than 0, एक ही होएगा with respect to BC, एक ही होएगा with respect to AC, and similarly SC upon SP must be greater than 0 and this will be with respect to A। अगर ये तीनों चीज़ां हो रही होंगियां तो आप कन्फर्म कर सकते हैं कि पॉइंट P is lying inside the triangle, ठीक है। अगर नहीं तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब कुछ ਹੋਰ सोचना पएगा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ।
A straight canal is at 9/2 kilometers from city center। ठीक है, खुद करके देखना है। A straight canal is at 9/2 kilometers from the city center and the nearest path to canal is in northeast direction and nearest path from canal to city center is in northeast east direction। ठीक है, a straight canal is at 9/2 kilometers from the city center and nearest path from the canal to city center is in the northeast direction। find whether a village situated at 4 kilometers north and 3 kilometers east lies on the canal or not। ठीक है, if not on which side does it lie। दोबारा पढ़ लो ध्यान नाल क्वेश्चन ਨੂੰ, सौखा ही है। A straight canal is at 9/2 किलोमीटर। 9/2 किलोमीटर की है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कैनाल फ्रॉम सिटी सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। एंड नियरेस्ट पाथ फ्रॉम कैनाल टू सिटी सेंटर इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का की मतलब ਹੁੰਦਾ नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल विचाले जी लाइन जाती है y=x। फाइंड वैदर अ विलेज सिचुएटेड एट 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 3 किलोमीटर ईस्ट लाइज ऑन द कैनाल और नॉट। इफ नॉट ऑन विच साइड डज इट लाई, वैदर इट लाइज ऑन द साइड ऑफ सिटी सेंटर और ऑन द ऑपोजिट साइड टू दैट। करो ट्राई। सब तो पहला तुहानू की चाहिए होगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट देखने के लिए आपां नू पॉइंट का पता लग गया। 4 किलोमीटर नॉर्थ 3 किलोमीटर ईस्ट का मतलब पॉइंट की होएगा 3,4 होएगा, 3,4 है ना। 3,4 की आपां रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है विद रिस्पैक्ट टू द कैनाल। कैनाल की इक्वेशन लिखनी पएगी। ठीक है, कैनाल की इक्वेशन लिखने के लिए आपां की करते हैं, देखो मान लो ये चीज़ हो रही है नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन की है अपने को, ये वाली डायरैक्शन नॉर्थ ईस्ट बन जाती है। द स्ट्रेट कैनाल इज एट 9/2 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड द नियरेस्ट पाथ फ्रॉम द कैनाल टू सिटी सेंटर इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन। मतलब ये वाला नियरेस्ट डिस्टेंस है तो कैनाल किवें जा रही होएगी, ऑटोमैटिकली इत्थों दी जा रही होएगी। ठीक है, एक ही आ गया अपने को कैनाल एंड सिटी सेंटर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा 9/2 किलोमीटर। and if the direction this shortest distance in the northeast direction का मतलब ये वाला एंगल कितना होएगा ऑटोमेटिकली 45 डिग्री। अगर मैंने ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, which form is to be used to write the equation of canal? x cos alpha plus y sin alpha equals to p। याद है ना, नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं ਆਪਾਂ। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री एंड पी की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। तो इक्वेशन ऑफ कैनाल विल बी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल्स टू 9/2। तो ये की हो जाएगा √2x या सिंपली x प्लस y इज इक्वल्स टू 9/√। यही होएगा। हुण अपने को पॉइंट की आया सीगा 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 3 किलोमीटर ईस्ट। तो ये ऑटोमेटिकली की बन जाएगा ईस्ट, ये की बन जाएगा नॉर्थ। तो पॉइंट की बन गया 3,4। 3,4 इनू सैटिस्फाई तो कर नहीं रहा, तो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द कैनाल। ठीक है, सैकेंड आप देख लांगे कि ओरिजिन का की है, अपना सिटी सेंटर की है ओरिजिन से है। ठीक है, इनू अगर थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखिए तो की लिखा हुआ दिस। तो S फॉर ओरिजिन की आ रहा है अपने को -9/√2 एंड S फॉर 3,4 की आ रहा है अपने को 7 - 9/√2। तो 7
√2 माइनस 9/√2 की होएगा पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ही होएगा। 7 इंटू 1.414 स्टिल दैट विल बी लेस देन 9 होएगा मेरे ख्याल से, लेस देन 9 ही होएगा। बाकी करके देख लियो ट्राई, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नेगेटिव। Now this is negative means same sign means they lie on same side, मतलब 3,4 की होएगा, that will be over कितने इतने बैठा है। ओके लिख लो, बना लो, पॉजिटिव आएगा पक्का। 1.414 इंटू 9 देख लो एक बारी, √2 1.414 है ना। अच्छा फिर पॉजिटिव, तो दे लाई ऑन ऑपोजिट, ठीक है। लिख लो जल्दी। फॉर्म्स याद है, फॉर्म्स तो नहीं भुले। सब तो पहला पढ़ी सी आप 2 पॉइंट फॉर्म, देन आप पढ़ी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। देन देयर इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन देयर इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। देन देयर इज नॉर्मल फॉर्म, ते कल आप किहड़ी पढ़ी सी पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। ये सारियां याद रहनी चाहिए। चलो वैसे तो आप ऑलरेडी अगला टॉपिक कर ही रखे, बट फिर भी एक बार लिखवा देना मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करांगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है। याद हो गया सी ये तो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। मान लो मेरे को कोई लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लिखनी होवे या आपां इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिखनी होवे। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिंपल किहदे च फर्क आएगा? कांस्टेंट दे विच फर्क आएगा, होर कुछ नहीं। तो ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर लाइन दे विच की होएगा? एक्स एंड वाई दे ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ एंड विद नेगेटिव साइन। तो bx माइनस ay प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर किते कन्फ्यूजन होवे भी कि वैदा तुसी सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो तो की कर लो, स्लोप्स कंपेयर कर लो। ਇਹਦੀ स्लोप की ਹੁੰਦੀ है माइनस a अपॉन b, तो मतलब ਇਹਦੀ स्लोप कितनी चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ? b अपॉन a, आ भी रही है b अपॉन a, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की स्लोप कितनी होती है? हमेशा माइनस a अपॉन b, ठीक है। लिख लो इन्हों एक बार दोबारा क्योंकि ये क्वेश्चंस करन लगे ਆਪਾਂ, ठीक है। छोटा जा पॉइंट बना के लिख लो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। पैरेलल दे विच की होएगा? सिंपली कांस्टेंट विल बी चेंजिंग एंड इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन b इत्थे आ जाएगा, a इत्थे आ जाएगा एंड a विल बी हैविंग अ नेगेटिव साइन, bx माइनस ay। करिए क्वेश्चन अगे, हो गया इतों तक? लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0,
3x minus 4y plus 5 equals to 0 passing through the point minus 1 comma 2, passing through the point minus 1 comma 2। लिखो जल्दी, 1 मिनट च आ जाएगा आंसर ਇਹਦਾ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2। पैरेलल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, -1, -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਆंसर ਆ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी plus lambda equals to 0। now -1, 2 lies on this line, so -3 -8 plus lambda equals to 0, तो lambda कितना आ जाएगा 11। ठीक है, hence the required equation will be 3x minus 4y plus 11 equals to 0। ठीक है, in same question write the equation of a line perpendicular to this passing through this। लिखो, write down the equation of a line which is perpendicular to this and passing through the same point। parallel ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏ perpendicular। ਤਨਿਸ਼ਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਭਰੀ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਰੱਖੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3x minus 4y plus 5 equals to 0। सुनो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की होनी चाहिए है -4x minus 3y plus lambda equals to 0। if it passes through -1, 2 तो 4 minus 6 plus lambda equals to 0, तो lambda कितना आ गया अपने को 2। so -4x minus 3y plus 2 equals to 0 will be the required equation। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, find the number of lines parallel to parallel to 2x plus 6y equals to 7। those have intercept of 10 between the coordinate axes। those have intercept of 10 units between x and y axis। ठीक है, find the equation of number of lines those are parallel to this and having intercept of 10 units between x and y axis। कोई मैथड नहीं है, आप ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन नहीं ਕੀਤਾ, जस्ट जनरल नॉलेज ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो देखो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ਇਹਦੀ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है तो मतलब लाइन ने कुछ इस तरीके ना बनेगी। ठीक है, मान लो कि ये वाली लाइन है जिहदे बारे आपां गल कर रहे हैं, 2x plus 6y minus 7 equals to 0। ठीक है, ਇਹਦੇ पैरेलल बहुत सारियां लाइनस हो सकਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10। मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that should be equals to 10। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ,
की करो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन की होएगी 2x प्लस 6y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 y कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 6। एट y इक्वल्स टू 0 x कितना आ जाएगा अपने को माइनस लैम्डा अपॉन 2। तो दिस पॉइंट इज माइनस लैम्डा अपॉन 2 कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 comma minus lambda upon 6. Now distance between these 2 points should always be equals to 10 simply। तो lambda दी जिन्नियां रियल वैल्यूज आउणगियां नंबर ऑफ लाइंस विल आल्सो बी सेम। ठीक है ना, तो की होएगा 0 comma minus lambda by 6 एंड माइनस लैम्डा बाय 2 comma 0 इन्हां दा डिस्टेंस हमेशा कितना रहना चाहिए 10। डिस्टेंस फार्मूला ला दिंदे आ की होएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 36 शुड बी इक्वल्स टू 100। 36 10 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 ये खत्म लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360। तो लैम्डा दी दो वैल्यूज आउणगी अपने कोले ते दोनों ही की होणगे रियल होणगियां। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर पॉसिबल देयर विल बी 2 लाइंस। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एक इत्थे होएगी एंड एक इस क्वाड्रेंट दे विच इत्थे लग ओके लिख लो छोटा सा नोट कर लो। ठीक है, नैक्सट टॉपिक पे आ जाओ। इस तो अगे जिहड़े होणगे टॉपिक्स जिन्ने भी आउणगे उत्थे फॉर्मूला टॉपिक नहीं होएगा फॉर्मूला होएगा फॉर्मूला तुहानूं याद रखना पैना। ठीक है, डेरीवेशन है कर सकते आपां बट लोड़ कोई नहीं ना किते काम आएगी आपां नूं कुछ सोचण की लोड़ नहीं सिंपल जे फॉर्मूलाज होणगे फॉर्मूले याद रखने आपां। ठीक है, तो फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस डिस्टेंस केड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। दूसरा तो याद है जिहड़ा आपां कल कीता सी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द गिवन सम अदर लाइन वो तो आपां नूं याद है वो आपां कल कर लिया सी। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना हो तो वो सिंपल है फॉर्मूला मान लो ये वाली लाइन की है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ये सामने एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 कॉमा y1। लेट द डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज d। की होएगा प्रांशु d d का की फार्मूला प्राची ax1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट्स मॉड बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल है याद करना कोई बड़ी गल नहीं हैगी। x की जगह पे की रख देना x1 y की जगह पे की रख देना y1 अंडर रूट की आएगा नीचे की आएगा डिवाइड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, जिवें एक एग्जांपल distance of 1,3 from 2x plus 3y minus 4 equals to 0। तो की होएगा डिस्टेंस ये वाला 2 into 1 d will be equals to 2 into 1 plus 3 into 3 minus 4 upon under root of 2 square plus 3 square। तो कितना हो जाएगा 9 9 ते 2 11 11 minus 4 7 7 अपॉन 9 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा रूट 13 सिंपल। ठीक है, इसकी डेरीवेशन हैगी है एक तरह नहीं 5-6 तरीके नाल आपां इहनूं डिराइव कर सकते हैं बट आपां नूं लोड़ कोई नहीं करन दी तो आपां सिंपली इहनूं याद करांगे दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ऊपर की लिख रखे आपां दिस इज पावर ऑफ इसी ने क्या सी ना आप पावर ऑफ पॉइंट वार वार वो चीज कम आऊगी अपने पावर ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। करिए क्वेश्चन दे दें। Find sum of abscissas of all points on the line x plus y equals to 4. Those are at a unit distance from, those are at unit distance का मतलब distance is 1 from the line 4x plus 3y equals to 10. From 4x plus 3y equals to 10. Find sum of abscissas of all the points on the line x plus y equals to 4. Those are at a unit distance from 4x plus 3y equals to 10. करो try. अच्छा मैनू पहला एक विजुअलाइज करके दिखाओ एक चीज़ ਨੂੰ सुनो। दो लाइनस ने पैरेलल नहीं हैगियां, अगर पैरेलल होणगियां तो हर एक पॉइंट तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होएगा, यही पैरेलल की कंडीशन होंदी है। अगर वो पैरेलल नहीं हैगियां दैन दो पॉइंट्स किवें एग्जिस्ट कर सकते जिहड़े दूसरी लाइन तो सेम डिस्टेंस ते होणगे। मतलब अंडर वैसे ही है, जनरल है, क्वेश्चन हो जाऊगा, क्वेश्चन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप एक बार विजुअलाइज करके देखना कि अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हैगी, अपन दिख रहा कि दे आर नॉट पैरेलल, अंडर व्हाट कंडीशंस देयर कैन बी टू पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन। दूसरी लाइन ते दो पॉइंट्स किवें हो सकते हैं जिहड़े गिवन लाइन तो इक्वल डिस्टेंस ते होणगे। किहो जी कंडीशन दे विच ये चीज़ होगा। हाँ नहीं कोइंसिडेंट भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है ना, अपन पता ना ही ये पैरेलल ने ना ही कोइंसिडेंट ने। देखो मैं की पूछना चाहना तुहाडे तो, ए वाली लाइन है 4x plus 3y equals to 10। दूजी लाइन अगर x plus y equals to 4 कह रहे हैं एंड उस लाइन ते इस x plus y equals to 4 ते एक तो ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, दोज आर एट द सेम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन। वो कदों होएगा जो ये लाइन इदां लंघ रही है, ए वाला पॉइंट है, ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना होएगा d, तो इत्थे भी एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जिहदा डिस्टेंस कितना होएगा d। मतलब वो किहदे एब्सीसास ਨੂੰ सम ਕਰਨ ਲਈ कह रहे हैं, ਇਹਨਾਂ दोनों पॉइंट्स ਦੇ एब्सीसास ਨੂੰ सम करके दस्सण ਲਈ कह रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन हो जाना सीगा, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ पता लगना चाहिए कि अगर दो तो ਵੱਧ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ पॉइंट्स कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ पॉइंट्स बारे गल कर रहे हैं। ठीक है, कर दो फिर तो सिंपल। ਆਪਾਂ ਕੀ कहने ਆ, लेट द पॉइंट्स बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, मान लो कि पॉइंट की ने अल्फा कॉमा बीटा एंड कंडीशन इज दैट अल्फा कॉमा बीटा शुड बी एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम this, तो d should be equals to 4 alpha plus 3 beta minus 10 upon 4 square plus 3 square and its under root इदा mod that should be equals to 1। यही कंडीशन है ना कि अल्फा कॉमा बीटा जो ਇਹਦੇ ਤੇ लाई कर रहे हैं ਉਹਦਾ इस लाइन तो डिस्टेंस हमेशा कितना रहना चाहिए 1। तो 4 alpha plus 3 beta minus 10 the mod is equals to 5, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। अल्फा एंड बीटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਬਸੀਸਸ, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस अल्फा। 4 अल्फा प्लस 3 इंटू 4 माइनस अल्फा माइनस 10 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। मॉड है, मॉड ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਆਨਸਰਸ ਆਉਣਗੇ प्लस एंड माइनस 5। तो दिस बिकम्स 12 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा इज अल्फा, 12 माइनस 10 इज 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो आइदर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो दोनों का सम कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4।
तो आवर आंसर विल बी -4. सम ऑफ एब्सिसास इज इक्वल्स टू -4. लिखो लिख लो, एक लास्ट क्वेश्चन खुद करना. फाइंड स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 4, -5 थ्रू 4, -5 which is at distance of 12 units from the point -2, 3. ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? Find the slope of a line through this which is at the distance of 12 units from the point -2, 3. करो ट्राई. स्लोप ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है ਕਿਹੜੀ लाइन ਦੀ? 4, -5 which is at the distance of 12 units from the point -2, 3. ਸਲੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ. If P is length of perpendicular from origin to prove that 1/a square कर दो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है, अगे आप कल इतों शुरू करेंगे.